नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत दुनिया के सबसे तवील तरीन 40 किलोमीटर SLBC सुरंग प्रोजेक्ट को जल्द करेगी मुकम्मिल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। ज़िले रंगारेड्डी के चेवेल्ला मंडल में भयानक सड़क हादसा, टिप्पर और RTC बस में तसादुम, तकरीबन 21 अफराद हलाक और कई जख्मी। चेवेल्ला बस हादसे के जख्मी और जांबाख अफराद के अहल खाना के लिए वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने इमदाद का किया ऐलान और वज़ीर डी श्रीधर बाबू के हमरा अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत। जुबलीस हल्के में BRS कायदीन की मुहिम का सिलसिला जारी, कांग्रेस के वादों को कर रहे हैं बेनकाब, BRS को वोट देने की अपील। BRS पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी से हासिल करदा रकम को जुबलीस इंतखाब में गलत तरीके से कर रही है इस्तेमाल, वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी का इल्ज़ाम। रियासत में बढ़ते हुए सड़क हादसात पर तशवीश जाहिर करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने आला ओहदेदारों के साथ जूम मीटिंग की मुनक्किद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत के सबसे बड़े और दुनिया के तवील तरीन 40 किलोमीटर SLBC सुरंग प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मिल करेगी। उन्होंने कहा कि 4,600 करोड़ रुपए की लागत से इस मनसूबे से 3 लाख एकड़ अराजी को कृष्णा के पानी से सैराब किया जाएगा। वज़ीर आला ने वादा किया कि ज़ेरे आप आने वाले मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला KCR हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि BRS हुकूमत ने 10 बरसों में 10 किलोमीटर भी काम नहीं किया और सियासी वजूहात की बिना पर प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि BRS ने कालेश्वरम पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन SLBC को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत कृष्णा के पानी के हक़ के लिए ट्रिब्यूनल में मजबूत दलाइल पेश कर रही है और T हरीश राव को ख़बरदार किया कि वो पानी के मसाइल पर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना बंद करें। ఆనాడు నిజంగానే చంద్రశేఖరరావు గారు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి సంవత్సరానికి 1 కిలోమీటర్ కూడా ఈ టన్నెల్ పూర్తి చేసి ఉంటే ఎప్పుడో ఈ ప్రాజెక్టే పూర్తి అయిపోయి నల్గొండ జిల్లాకు ఫ్లోరైడే కాకుండా సాగునీరు తాగునీరు అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అయి ఉండేవి. కానీ రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పేరు వస్తుంది, నాకు పేరు రాకపోను కమిషన్లు కూడా రావడం లేదు అని చెప్పి హరీష్ రావు గారు చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తిగా పక్కన పడేసింది. దాంతో తీరని అన్యాయం జరిగింది. ఈ లోపల 11,000 క్యూసెక్ల నీళ్లు తరలించకపోయే పోతిరెడ్డిపాడును 44,000 క్యూసెక్లకు పెంచుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిపోయింది. 44,000 క్యూసెక్ల పోతిరెడ్డిపాడును మళ్ళీ 80,000 క్యూసెక్లకు పెంచుకోవడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఆ పనులు కూడా దాదాపుగా పూర్తి చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇవాళ గ్రావిటీ ద్వారా 4,000 క్యూసెక్ల నీళ్లను మనం నల్గొండకు తీసుకెళ్లాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తే చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క కుత్సితమైన ఆలోచనలతోటి వక్ర బుద్ధితోటి ఈ ప్రాజెక్టును పడుకోబెట్టిండ్రు. మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇది మొత్తం దేశంలోనే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ ఒక విషయం మీడియా మిత్రులకు చెప్పాలి, ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా 42 కిలోమీటర్ల టన్నెల్ ప్రాజెక్టు ప్రపంచంలోనే లేదు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తే ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన టన్నెల్ అనేది మనకే కీర్తి దక్కడమే కాకుండా అనా పైసా ఖర్చు లేకుండా నీళ్లు అవలీలగా నల్గొండ జిల్లాకు 30 TMCలు 3 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు తీసుకుపోవడానికి 1 రూపాయి ఖర్చు లేకుండా గ్రావిటీ తోటి ఈ రోజు అదే భూమికి నీళ్లు ఇవ్వాలంటే AMRP లిఫ్టులతో వాడితే సంవత్సరానికి 500 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు విద్యుత్ ఖర్చులు అవుతున్నాయి. ఈ 10 ఏళ్లలో 5,000 కోట్ల రూపాయలు విద్యుత్ ఖర్చు పెట్టింది కానీ 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ప్రాజెక్టు పూర్తయి ఉండేది. ఈ రోజు కూడా పెరిగిన అంచనాలు 20 ఏళ్ల తర్వాత లెక్కేస్తే కూడా 4,600 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుంది. అంటే 20 ఏళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క అంచనాలు పెరిగింది 2,600 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే. ఆనాడు 2,000 కోట్లతో టెండర్ పిలిస్తే ఈనాడు ఈ రోజున్న అంచనాల ప్రకారం 4,600 కోట్ల రూపాయలు, అంటే కేవలం 2,600 కోట్ల రూపాయల అంచనాలు పెరిగితే 30 TMCలు 3 లక్షల ఎకరాలకు మనము గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చుకున్న ప్రాజెక్టును దుర్మార్గమైన ఆలోచనతోని రాజకీయపరమైన ద్వేషంతో నల్గొండ జిల్లాకు మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చంద్రశేఖరరావు గారు తీరని అన్యాయం చేసిండు. ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకోకపోవడం వల్ల
కృష్ణానది మీద ప్రారంభించిన ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అన్యాయం జరిగింది సమైక్య పాలనలో అని చెప్పిన చంద్రశేఖరరావు గారు కృష్ణానది మీద ఆనాడు మొదలుపెట్టినాయి కానీ ఆయన మొదలుపెట్టినాయి కానీ భీమా కానీ నెట్టంపాడు కానీ కోయిల్ సాగర్ కానీ పాలమూరు రంగారెడ్డి కానీ లేకపోతే కల్వకుర్తి కానీ ఎస్ఎల్బిసి కానీ ఏ ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఒక్కటి పూర్తి చేయాలి. जुबली हिल्स हल्के में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता और दीगर कायदीन की मुहिम का सिलसिला तेज़ी से जारी है। बीआरएस कायदीन और उम्मीदवार सुनीता आवाम से अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाएं। सुनीता और दीगर बीआरएस कायदीन ने हर मोहल्ले गली और सड़क पर आवाम से बराह रास्त रब्ता कर रहे हैं। इन कायदीन का कहना है कि आवाम के भरपूर ताउन से ही हल्के में कामयाबी यकीनी हो सकती है। हर वोट ख़वातीन और नौजवानों के मुस्तक़बिल के लिए अहम है। बीआरएस ख़वातीन कायदीन ने कहा कि हुकूमत ने माहाना ख़वातीन को 2500 रुपये फ़राहम करने का वादा किया था, लेकिन ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी हुई और दीगर वादे भी पूरे नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने बीआरएस को वोट देकर कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की। आवाम से कहा गया है कि वो कार के निशान को याद रखकर वोट दें और बीआरएस क़ियादत को मजबूत करें ताकि जुबली हिल्स में तरक्की का नया दौर शुरू हो सके। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్, ఆరు గుర్తుకే సునీతమ్మకే, సునీతమ్మకే చెల్లెళ్ళు. ज़िले रंगारेड्डी के चेवेल्ला मंडल में एक दिल दहलाने वाले सड़क हादसे में अब तक 21 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 7 मर्द और 12 औरतें और एक बच्चा शामिल है। हादसा उस वक्त पेश आया जब चेवेल्ला मंडल के मिर्ज़ागुड़ा इलाके के करीब तांडूर डिपो की आरटीसी बस को कंकर से भरी टिप्पर लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद टिप्पर का भारी कंकर बोझ बस पर जा गिरा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद मौके पर ही हलाक हुए, जबकि कई ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसमें ज़्यादातर तलबा और मुलाजिमीन शामिल थे, जो इतवार की तातील के बाद अपने घरों से हैदराबाद वापस आ रहे थे। हादसे के बाद हैदराबाद बीजापुर हाईवे और चिवेल्ला विकाराबाद पर गाड़ियों की आमदरफ्त शदीद मुतासिर हुई। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ अंजाम दी। चेवेल्ला बस हादसे पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अफसोस का इजहार करते हुए अहल खाना और ज़ख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान किया। जाँ बाग अफराद के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए और आरटीसी से 2 लाख रुपए बतौर एक ज़िक्रिशा दिया जाएगा, जबकि ज़ख्मियों को हुकूमत की तरफ से 2 लाख रुपए हर्जाना दिया जाएगा। वज़ीर ने पटना महिंद्रा रेड्डी मेडिकल कॉलेज में ज़ख्मियों का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर डी श्रीधर बाबू बिन के हमरा मौजूद थे। दोनों वज़रा ने ज़ख्मियों से बातचीत करते हुए डॉक्टरों को बेहतर इलाज की हिदायत दी। उन्होंने हादसे में जाँ बाग अफराद के पोस्टमार्टम के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया और आरटीसी, पुलिस और तिब्बी अमले के साथ मुसलसिल राब्ता और निगरानी के ज़रिए मुतासरीन की मदद को यकीनी बनाया। बीआरएस पार्टी के एमएलसी नवीन रेड्डी और उप्पल के एमएलए ए लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की सिर्फ केसीआर और बीआरएस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ की कामयाबी के लिए सोमाजुगुड़ा डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में साबिका कॉरपोरेटर्स महेश यादव, शंकर, देविंदर रेड्डी और दीगर मुकामी कायदीन ने भरपूर हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी से हासिल करदा रकम को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि केटीआर हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं, मगर आवाम इन्हें खुद मुस्तरद कर देंगे। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल भी कांग्रेस हुकूमत ही रहेगी और गरीबों के आंसू पहुँचने तक पार्टी आराम नहीं करेगी।
మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆనాటి మాజీ మంత్రులందరికీ ఏవైతే ఈ నియోజకవర్గాలకు వచ్చి అవాక్కులు చవాక్కులు పేలుతూ మళ్ళీ మాయ మాటలు చెప్పి మళ్ళీ పేదోళ్ళని మోసం చేయాలని మీరు తాపత్రయపడుతున్నారు. 500 రోజుల్లోనట మళ్ళీ మా ప్రభుత్వం వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఎలా వస్తుంది మీ ప్రభుత్వం? ఇంకా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలను కొన్నది 5 సంవత్సరాల్లో ఇంకా 2 సంవత్సరాలే పూర్తి కాకపోయా ఎలా వస్తుంది మీకు 5? रियासत ने बढ़ते हुए सड़क हादसात पर तशवीश जाहिर करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आला ओहदेदारों के साथ एक ज़ूम मीटिंग मुनक़्क़िद की। उन्होंने हिदायत दी है कि हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ और गाड़ियों की फ़िटनेस, स्पीड लॉक और सड़क की हिफाजत पर ख़ास तवज्जो दी जाए। वज़ीर ने कहा कि क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाली कमर्शल और मुसाफिर गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएँ। उन्होंने ताकीद की है कि महकमा मुसलसल निगरानी करे और अवामी मुश्किलात के बगैर मौसर तौर पर क़ानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन आइटा तेलंगाना के ज़रिए एहतमाम 2025 ta 2028 के मीक़ाती पॉलिसी प्रोग्राम का इजलास ज़हीराबाद के इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसके सदर आइटा मीर मुमताज़ अली ने किए। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी की ख़िरात कलाम पाक से हुआ और ज़िले सदर मोहम्मद मोइज़ुद्दीन ने इफ्तिताई कलिमात पेश किए। इजलास में मुफ्ती मिनहाज क़ादरी निज़ामी, मोहम्मद अब्दुल मुजीब, सैयद अज़हरुद्दीन, मोहम्मद सिराज और दीगर ने तालीमी क़ियादत, बसीरत और तंज़ीमी उमूर पर अहम खिताबात किए, जबकि मोहम्मद इमरान अहमद ख़ान ने दरस हदीस पेश करके सामाईन को मुतासिर किया। इजलास में 2025 ta 28 की मीक़ाती पॉलिसी की तफसीलात पर तबादिले ख़याल किया गया और रियासती व ज़िलाई सतह पर मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर किया गया। 2 इजलासों के बाद शुरुकाने यूनिट्स और ज़िले के एक्शन प्लान पर तफसीली बहस किए और नई पॉलिसी के अहदाफ व उसूलों पर अमल दरामद के लिए अज़्म ज़ाहिर किया। इजलास का इख्तिताम दुआ और इज़हार तशक्कुर के साथ मुकम्मिल हुआ, जिसके इंतज़ामात सैयद अब्दुल हफीज़, मोहम्मद अब्दुल मुजीब और मोहम्मद सालार ने बखूबी अंजाम दिए। कि गवर्नमेंट जो मुस्बित कामों का अंजाम दे रही है उसको पहले बनाया जाए कि उन कामों के साथ मौजूदा हालात में यानी कि 2020 का जा रही है उस दिमाग में हमने सिफारिश पेश की। तो जनाब केजरीवाल साहब ने 40 मिनट हमारे से बात और बाद में उन्होंने तो फैसला किया कि टीचरों की क्लास मैंने 45 मिनट की। मेरा बोलने का मकसद ये है कि जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इशू एड्रेसिंग कमेटी के तहत जो मुतालबात को गवर्नमेंट के सामने रखना है, सिफारिशात को रखना है, उसमें इस विकास के अंदर हमारे जरिए से बहुत से काम नहीं हम पा रहे हैं। जो खत्म है ये सिर्फ रस्मी इजलास नहीं है बल्कि रूहानी तजदीद का जरिया बना है, फिक्री रहनुमाई का जरिया बना है और अमली अज़म का हम इजहार करके हासिल किए। और हम तमाम जानते हैं कि कौमों की जिंदगी में नजरिया भैंसा शहर के काटन मार्केट यार्ड में CCI के तहत कपास खरीदी मरकज़ का इफ्तिताह तालुका मुधोल MLA पी रामाराव पटेल और ज़िला कलेक्टर अभिशाला अभिनव IAS के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CCI के ज़रिए कपास फ़ी कुंटल 8,110 रुपये ख़रीदी जाएगी। बाज़ार ज़िला कलेक्टर और MLA ने मार्केट यार्ड में सोयाबीन खरीदी मरकज़ का भी मुआयना किया। इस प्रोग्राम में भैंसा सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार IAS, AD मार्केटिंग गजानन, ज़िला एग्रीकल्चर ऑफिसर अंजी प्रसाद, भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल, तहसीलदार प्रवीण कुमार, MPDO नीरज कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर राजेश कुमार और दीगर आला ओहदेदारों के अलावा किसान बरादरी के अफराद भी मौजूद थे। పత్తి కొనుగోలు కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నాతో పాటు నేను ఎమ్మెల్యే గారు, ఏఎంసీ చైర్మన్ గారు అందరూ ఇక్కడ పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు నుంచి CCI కొనుగోలు కార్యక్రమం ఫస్ట్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. CCI వాళ్ళకి కూడా ప్రత్యేకంగా సూచన ఇవ్వడం జరిగింది, ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈసారి మనకి ఫ్లడ్ వల్ల అంటే అన్టైమ్లీ రెయిన్స్ వల్ల చాలా వరకు కాటన్లో కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో మాయిశ్చర్ కొద్దిగా చూడకుండా, వాళ్ళది 12% అప్పర్ లిమిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది కొద్దిగా చూడకుండా లీనియంట్గా హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్లో వాళ్ళు ఎక్కువ పర్చేస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అదే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా 100% రైతుకు కోఆపరేట్ చేస్తారు.
మనందరికీ నమ్మకం ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కొంతమంది రైతులు ఇప్పుడు యాప్లో 8 కనపడుతుంది, 12 కనపడతలేదు, 7 కనపడుతుంది, అది ఒక మాట చెప్పారు. అది కూడా మనం ప్రత్యేకంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి అది కూడా పెంచడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తాము. అదే రైతుకి ఎలాంటి నష్టం రాకుండా చూడడానికి బాధ్యత మనకి ఉంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దీనికోసం 100% కోఆపరేట్ చేస్తారు. అది కాటన్ వాళ్ళతో మనం కూడా మాట్లాడతాం. ఈ రోజు నుంచి మీ కాటన్ స్టార్ట్ అయింది కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో. కొన్ని రోజుల తర్వాత మీ సోయాబీన్ పర్చేస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరూ రైతులకి ఒకే రిక్వెస్ట్, రూమర్స్ నమ్మకూడదు. ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క గింజలు కూడా మనం పర్చేస్ చేస్తాం. మాయిశ్చర్ విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. వీలున్న వరకు డ్రై చేసి తీసుకువస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా కొనుగోలు అవుతుంది. లేకపోతే మళ్ళీ మార్కెట్ ప్లేసెస్లో ఆరపెట్టి కొనుగోలు అవుతుంది. ధన్యవాదాలు. शहर हैदराबाद के मासब टाइम में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, बालाजी, अब्दुल्ला और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना हुकूमत दुनिया के सबसे तवील तरीन 40 किलोमीटर SLBC सुरंग प्रोजेक्ट को जल्द करेगी मुकम्मिल, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। ज़िले रंगारेड्डी के चेवेल्ला मंडल में भयानक सड़क हादसा, टिप्पर और RTC बस में तसादुम, तकरीबन 21 अफराद हलाक और कई जख्मी। चेवेल्ला बस हादसे के जख्मी और जांबाग अफराद के अहल खाना के लिए वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने इमदाद का किया ऐलान और वज़ीर D श्रीधर बाबू के हमरा अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत। जुबलीस हल्के में BRS कायदीन की मुहिम का सिलसिला जारी, कांग्रेस के वादों को कर रहे हैं बेनकाब, BRS को वोट देने की अपील। BRS पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी से हासिल करदा रकम को जुबलीस इंतखाब में गलत तरीके से कर रही है इस्तेमाल, वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी का इल्ज़ाम। रियासत ने बढ़ते हुए सड़क हादसात पर तशवीश जाहिर करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने आला ओहदेदारों के साथ जूम मीटिंग की मुनाक़िद। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।